people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. The outbreak of pandemic has corroborated Lenin's dictum that there are decades where nothing happens, and then there are weeks where decades happen. COVID-19, indeed, in an already volatile world mired in disarray, has further augmented uncertainty in the interstate transactions. The pandemic's outbreak has manifested the fragility of global supply chains and vulnerability of nation-states to hyper-dependence. Although the tendencies of greater interconnectivity were already under severe opposition prior to the outbreak of COVID-19, the pandemic has further bolstered the resistance to the notion of a borderless world and transformed resultantly globalization into what came to be known as globalization and globalization. There is no defying the fact that no nation appeared victorious over the havoc wreaked by the pandemic, but the vulnerability of developing nations like Pakistan superseded all others in this pattern. Being already mired in a host of perennial challenges, higher infection rates were no less than a social holocaust to Pakistan, as the pandemic squarely gripped every sector in its wrath to inflict unacceptable damages and pain. More precisely, apart from overwhelming health sector, the COVID-19 arrested Pakistan's economic activities in the domestic market, deteriorated Pakistan's fiscal profile, nurtured dependency, exacerbated country's forex reserves, necessitated external help, and skyrocketed poverty and unemployment rates. In other words, COVID-19 changed everything in a topsy-turvy manner. Having such grim repercussions in hindsight, today we are going to cover such areas as how the COVID-19 affected Pakistan's economic profile, what measures did the government take in the aftermath of COVID-19, how the pandemic descended as a blessing in a disguise, and finally we will provide certain policy prescriptions as how the government should tackle or confront such issues in future. The outbreak of COVID-19 is regarded as one of the watershed developments in human history that has changed the planet for once and all. In that, the pandemic has manifested the fragility and vulnerability of mankind vis-a-vis unforeseen natural events. More concisely, the novel virus has put to shame the otherwise widely acknowledged and practiced conceptions on economics, politics, social norms, modes of education, and means of sustenance. Against the reality of aforesaid COVID-induced transformations are today's sitting revolves around the impacts of COVID-19 on Pakistan's economy. In this lecture, we will make an attempt to understand the untoward situation culminated in Pakistan's economic realm due in part to the invasion of an invisible yet invincible enemy. जो टॉपिक आज डिस्कशन में है उसका टाइटल आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, कोविड-19 एंड पाकिस्तान's economy. Let it consider this way, COVID-19 and its impacts on Pakistan's economy. As always, इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं हमने ताकि टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो आइडिया है या हमारा जो स्टैंस है वो क्लियर होगा. यहाँ पे तो लिखा है, Pakistan's economy contrasted, employment soared, sectoral efficacy plummeted unprecedentedly in the wake of COVID-19. ये स्टेटमेंट है जफर मोती, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे कराची स्टॉक एक्सचेंज के. इनका कहना यह है कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी कंट्रैक्ट कर गई. ठीक, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुई और सेक्टोरल एफिकेसी है वो ख़त्म या कम हुई इन द वेक ऑफ कोविड-19. इसी तरह अगर हम आगे चलें तो विकार अहमद पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट हैं. इनका कहना है, द पेंडेमिक रिवर्स्ड व्हाट हैड बीन अचीव्ड ओवर द इयर्स विद ग्रेट पेन. यानी पाकिस्तान में प्री कोविड-19 इरा में जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान ने अटेन की थी वो कोविड-19 के इरप्शन ने रिवर्स कर दिया उसे. सिमिलरली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट यहाँ पे है कि कोविड-19 हैज़ डबल्ड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन पाकिस्तान. तो इन स्टेटमेंट से हमें आज आइडिया आ जाता है कि कोविड-19 अफेक्टेड पाकिस्तान बैडली. ठीक, आगे चले जाते हैं. इस डिस्कशन की जो सेकंड हेडिंग है या इस एसे का जो सेकंड सेक्शन है वो इस ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, या यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या रेमिफिकेशंस रहे कोविड-19 के ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी. इसको ऐसे हमने यहाँ पे नोट किया है, एक्सप्लोरिंग द डेलिटीरियस रिपरकशंस ऑफ पेंडेमिक ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी. इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट्स रहे कोविड-19 के पाकिस्तान की इकोनॉमी पर. जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कोशिश इस डिस्कशन में हमारी यही है कि
ऐसे पॉइंट्स हम मेंशन यहाँ पे करें या नोट डाउन करें कि जो कि सुन के पढ़ के समझ आए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ना हो हमें। तो फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, skyrocketing infection rates necessitated greater government spending and thereby eroding fiscal space। आप लोगों को याद है कोविड-19 जब इरप्ट हुआ पाकिस्तान में या फर्स्ट केस यहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो गवर्नमेंट ने जो है वो एक इरेशनल मैनर में, क्योंकि नेसेसिटी ऐसी थी, डेवलपमेंट ऐसी थी कि गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंडिंग जो है ना वो एलोकेट करना पड़ा टुवर्ड्स द eruption of COVID-19 or to control the damage inflicted by COVID-19। तो उससे हुआ यह कि हमारे पास जो रेवेन्यू और जो स्पेंडिंग में जो गैप था वो एक इम्बैलेंस सिचुएशन पैदा हुई, जिसको हम कहते हैं, अगर हमारे पास रेवेन्यू और स्पेंडिंग में इम्बैलेंस हो तो उसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो कोविड-19 के एरप्शन ने पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन रेट हमारे पास रही कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो ज़्यादा जो है ना वो जो रेवेन्यू था उसमें उसको ज़्यादा एलोकेट करे टुवर्ड्स दिस वेरी सिनेरियो। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोविड-19 के एरप्शन ने पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट को फर्दर एग्जासरबेट किया। पॉइंट 2, pandemic-induced countrywide lockdowns interrupted critical supplies to agriculture sector, affected crop yielding and thereby nurtured trade deficit। अब पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि ग्रेटर स्पेंडिंग ने जो है पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट को जनरेट किया। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है, चूंकि कोविड-19 23 मार्च आई गेस 23 मार्च के बाद जो है पाकिस्तान में 2028 आई बिलीव, यस 2028 पाकिस्तान पूरे में जो ना कंट्री वाइड लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसिटी जो मूवमेंट थी वो ना हो सकी। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन सारा जो है ना वो जैम रहा। इसकी वजह से जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि फैक्टर्स लेड है, यानी उसके लिए क्रिटिकल जो है ना इनपुट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू जनरेट आउटपुट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो नेसेसरी जो उसके मतलब वहाँ पे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट नहीं हुई इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फॉर एग्जांपल टाइमली जो ना फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं हुए एंड सो ऑन। बाहर से जो हमारे इम्पोर्ट्स होते हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर वो टाइमली रिसीव ना हुए। अब टाइमली जब रिसीव नहीं होंगे क्रिटिकल इनपुट्स, तो उस केस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई पाकिस्तान में। उस प्रोडक्टिविटी कम कैसे हुई? क्रॉप की जो यील्डिंग है हमारे पास जो टोटल प्रोड्यूस था वो उसकी क्वांटिटी कम हुई। और जब ये सारा कुछ होगा तो हमें पता है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रारियन इन नेचर है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट एक्सपोर्ट्स क्रॉप्स, ठीक, एंड सो ऑन। तो अब इस पूरी सिचुएशन से एक ऐसा सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो या सिचुएशन डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स ज़्यादा किए, एक्सपोर्ट्स कम किए। ठीक, वैसे तो हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पहले भी हम इंपोर्ट करते थे प्रायर टू कोविड-19, लेकिन अब के जो कोविड-19 के बाद हमने हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो हमने इंपोर्ट किए, ठीक, और एग्रीकल्चर के लिए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, यानी पाकिस्तान ने इंपोर्ट ज़्यादा किए, एक्सपोर्ट कम किए। ठीक, थर्ड पॉइंट, economic downturn in major export destinations adversely impacted current account deficit। थर्ड हमारे पास जो इम्पैक्ट रहा कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। यहाँ पे दो चीज़ें हमने समझना है, एक तो ट्रेड डेफिसिट क्या है और जो दूसरा हाईलाइटेड रीजन यहाँ पे है उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा सिनेरियो है इकोनॉमिक्स में जो कि तब जनरेट होता है जब एक कंट्री इंपोर्ट्स ज़्यादा करे और एक्सपोर्ट्स कम करे। उस सिचुएशन को या उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में ट्रेड डेफिसिट। इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है या एक ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमिक रेल्म में जो कि तब जनरेट होती है जब किसी कंट्री में इनफ्लोस कम हो, आउटफ्लोस ज़्यादा हो। मसलन हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा डॉलर्स पे करने होंगे। ठीक, पाकिस्तान अपने फॉरेक्स रिजर्व से ज़्यादा डॉलर्स पे करेगा टू import something from certain country to पाकिस्तान। तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी इस केस में पाकिस्तान ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर कमा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को हमने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट। सो इस पॉइंट से हमें यह समझ आया कि कोविड-19 के एरप्शन ने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो प्रोफाइल था उसको फर्दर डिटीरियोरेट किया। पॉइंट 4 की तरफ चले जाते हैं। द नोवेल वायरस अरेस्टेड FBR's पोटेंशियल फ्रॉम जनरेटिंग टारगेटेड रेवेन्यू। जैसे आगे हमने मेंशन किया है कि टैक्स टू GDP रेशियो पाकिस्तान के इवन प्रायर टू ये तो खैर सिचुएशन प्रायर टू कोविड-19 भी थी कि 11% हम टोटल जो है ना हमारा जो रेवेन्यू था टैक्सेस से हम जनरेट कर रहे थे, या जिसको हम कहते हैं टैक्स टू GDP रेशियो, या GDP में जो टैक्सेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 11% थी प्रायर टू कोविड-19। लेकिन कोविड-19 के इरप्शन की वजह से जो FBR जो टैक्सेस कलेक्ट करता है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, उसकी कैपेसिटी फर्दर नैरो डाउन हुई इन द वेक ऑफ
कोविड-19। अब जब हमारे पास टैक्सेस कम कलेक्ट होंगे तो कैसे सिस्टम चलेगा, क्योंकि हम कहते हैं टैक्सेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू थ्रू विच अ गवर्नमेंट फंक्शन और थ्रू विच अ स्टेट रन। ठीक, तो ये सिचुएशन हमारे पास कोविड-19 ने क्रिएट की। पॉइंट 5 की तरफ चले जाते हैं। डेथ ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इंडिजिनस मार्केट ब्रोट ग्रोथ टू स्टैंड स्टिल। अब जाहिर बात है जब कोविड इंड्यूस लॉकडाउन होगी तो वहाँ पे इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटी नहीं होगी। अब जब ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी। तो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन पाकिस्तान में हुआ, उस लॉकडाउन की वजह से जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे ना हुई। जब ये नहीं होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी? जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो उसी को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि पाकिस्तान में डिपेंडेंसी का फैक्टर बढ़ा एंड आगे जाके लीडिंग टू इंक्रीजिंग पॉवर्टी रेट्स। तो इस सारी सिचुएशन को यहाँ पे हमने ऐसे मेंशन किया है कि जैसे नजरबाज के पहले ये स्टेटिस्टिकल डेटा हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पे। कोविड-19 की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो वॉल्यूम रहा वो 15 मिलियन है, यानी 15 मिलियन जो है ना वो लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड हुए इन द वेक ऑफ कोविड-19। अब ऐसा कहना है डॉक्टर हाफिज पाशा जो कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट है, फॉर्मर जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक का भी यही कहना है कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 मिलियन जो है ना लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड रहे। सिमिलरली पाइट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से जो पॉवर्टी रेट इंक्रीज हुई उसका वॉल्यूम हमारे पास 20 मिलियन जो लोग हैं वो पॉवर्टी का शिकार हुए कोविड-19 की वजह से। सिमिलरली कोविड-19 की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो स्पाइक कर गई बिटवीन 10 to 13% अकॉर्डिंग टू SBP और PBS के अकॉर्डिंग एंड पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट रही ड्यूरिंग कोविड-19 और ड्यू टू कोविड-19 वो 10.4% रही। अच्छा, अब आते हैं कि कैसे कोविड-19 की वजह से जो यहाँ पे लॉकडाउन हुआ और जो बिजनेस एंड ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे ना हुई उससे क्या हुआ सिनेरियो। यहाँ पे हमने एक फ्लो सा बनाया, इसको आप लोगों ने कंसीडर करना है कि ये क्या है। हमने सबसे पहले कहा कि होलिंग आउट मिडिल क्लास, ये कैसे हुआ? मतलब ऊपर हमने बात की कि कोविड-19 की वजह से FPR ने जो मच नीडेड टैक्सेस थे वो कलेक्ट नहीं किए। अब जब हमारे पास डायरेक्ट सोर्स या डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, जो कि टैक्सेस को कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं या प्रोग्रेसिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्सेस। अब जब हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो सिस्टम था उसकी वजह से जो टारगेटेड जो रेवेन्यू था वो जनरेट नहीं हो सका, तो FPR ने या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अपने सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है, सिस्टम को रन करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रायोरिटाइज किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप लोगों को पता है GST है वगैरह, सही। अब जब हर प्रोडक्ट पे GST हम लिवाई करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास जो मिडिल क्लास है या जो पॉपुलेस है या जो कंज्यूमर है उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है, ठीक। यानी वो मतलब इन्फ्लेशन की वजह से या एक मतलब इन्फ्लेशन इतनी होती है कि जो हमारे पास कस्टमर है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये बात डिस्कस करना चाह रहे हैं कि चूंकि FPR ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि रिग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव नहीं है, उनको ज़्यादा फोकस या प्रायोरिटाइज किया, जिसकी वजह से मिडिल जो क्लास थी पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट अब नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर आगे चलें फिर अरेस्टिंग परचेसिंग पावर ऑफ मिडिल क्लास, आगे नेक्स्ट लीडिंग टू लेस डिमांड या लेसर डिमांड। यहाँ पे लेसर डिमांड होना चाहिए, आप लोग ये कंसिडर कर लें, लेसर डिमांड। अच्छा, अब जब मिडिल जो हमारे पास क्लास है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉपुलेस है उसकी परचेसिंग पावर का मतलब ये है कि वो क्या क्या परचेस करना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक, वो परचेसिंग पावर डिक्रीज हुई ड्यू टू कोविड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। आगे क्या होगा जब हमारे पास परचेसिंग मार्केट में परचेसिंग पावर कम होगी तो उस केस में मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई। अब डिमांड जब कम होगी मार्केट में तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना कम करेंगे, जिसको हमने कहा है लेसर डिमांड। यहाँ पे लेसर आप लोग कंसिडर कर लें। इसके बाद क्या होगा? नॉन एग्जिस्टेंट जॉब क्रिएशन। जब डिमांड नहीं है तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, जब प्रोडक्शन नहीं है तो फिर उसको प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर फोर्स की जरूरत नहीं है। जरूरत ना होने का मतलब ये कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक। अगर आगे चले जाएं, ग्रेटर डिपेंडेंसी, जब जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो हमारे पास जो फैमिलीज में जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिपेंड करेंगे किस पे? जो अर्निंग हैंड्स हैं उनके ऊपर, ठीक। जिसकी वजह से क्या होगा? सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन, एक सोशल अनरेस्ट जनरेट होगा। उस सोशल अनरेस्ट और फ्रस्ट्रेशन लीड करेगा टुवर्ड्स इंटरनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कहा जाता है कि हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। तो ये सारी सिचुएशन जनरेट हुई इन द वेक ऑफ कोविड-19। फर्दर आगे चले जाते हैं। पॉइंट 6 की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो पॉइंट 6 में हमने लिखा है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट्स रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट और रेग्रेसिव और क्रूअल ऑफ ऑल टैक्सेस।
एंड thereby exacerbating purchasing power and inflation। ये उसी पॉइंट से हमने डिराइव किया जो पीछे हमने पढ़ा कि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्सेशन को की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेशन को प्रायोरिटाइज किया, और उसी इनडायरेक्ट टैक्सेशन ने जो मिडिल क्लास और जो पॉपुलेस है उसकी परचेसिंग पावर अरेस्ट की, ठीक। और इसी से हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुई, क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रायोरिटाइज करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7 देख लेते हैं। कोविड-19 अरेस्टेड द टूरिज्म सेक्टर फ्रॉम डिस्कवरिंग एंड रियलाइजिंग इट्स ट्रू पोटेंशियल। जाहिर बात है, जब दुनिया भर में लॉकडाउन होगा, मूवमेंट नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन इंटायरली स्टॉप होगा और हॉल्ट होगा, तो उस केस में पाकिस्तान में इंटरनल एंड एक्सटर्नल टूरिस्ट जो है ना वो उनका फ्लो नहीं होगा। तो ये कोविड-19 ने पाकिस्तान का जो टूरिज्म सेक्टर है उसका जो पोटेंशियल था उसको अरेस्ट किया, या उसको अपनी जो उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल था उसको रियलाइज करने से रोका। पॉइंट 8 की तरफ चले जाते हैं। कोविड-19 हॉल्टिंग द अदरवाइज एक्सपेडिशियस प्रोग्रेस ऑन एंड पेस ऑफ सीपेक। आप लोगों को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि सीपेक के जो प्रोजेक्ट जितने भी थे प्रायर टू कोविड, जो फंक्शनल थे प्रायर टू कोविड-19, वो सारे स्टैंड स्टिल हो गए इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। पॉइंट 9 देख लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर रिसीव्ड अ जोल्ट। अब चूंकि हमारे पास सिस्टम जो कि हमारा जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो ट्रेडिशनल है या फिजिकल हम उसको फॉलो करते हैं, तो जब कोविड-19 की वजह से जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, तो उस लॉकडाउन की वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो अब स्कूल जाना बंद हुए, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले ऑलरेडी हमारे पास जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे उनका नंबर जो है ना वो राइज कर गया ड्यू टू कोविड-19। आखिरी यहाँ पे लास्ट पॉइंट, कोविड-19 डिटीरियोरेटेड जेंडर इनइक्वालिटी, वायलेंस एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब जाहिर बात है, जब सारा कुछ बंद होगा तो जो मेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब उनका वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन वो बढ़ा। तो आप इसको ऐसे समझ लें, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ना वो इंक्रीज हुआ ड्यू टू कोविड-19। इसी को हमने लिखा है, द अदर हाफ ऑफ सोसाइटी इज बेड फ्रॉम प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीज इकोनॉमिक व्हीकल। अब हमें ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी है, ऑलमोस्ट 50% फीमेल यहाँ पे हैं, ठीक। और उनमें से हार्डली कोई, मतलब अब एग्जैक्ट नंबर इस टाइम माइंड में नहीं, लेकिन हार्डली कुछ ही हैं जो कि मतलब निग्लिजिबल जो है ना वो अमाउंट ऐसा है जो कि वर्क फोर्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो कोविड-19 ने फर्दर जो है ना वो जेंडर इनइक्वालिटी को इंक्रीज किया। तो ये हमारे पास कुछ एरियाज थे जो कि, या ऐसी डेवलपमेंट्स थी जो कि कोविड-19 ने इंड्यूस की अपने आफ्टर आउटब्रेक के बाद। अब पॉइंट 3 की तरफ चले जाएं अगर हम, या सेक्शन 3 में, इसमें हम पढ़ेंगे ये कि पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या मेयर्स लिए टू अरेस्ट द रेस्ट और हैवक wreaked by COVID-19। इसको हमने लिखा है unearthing damage recovery measures taken in so far by the government। सबसे जैसे आप लोगों को पता है कि इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज ऑफ RS 1.2 ट्रिलियन, गवर्नमेंट ने इस फंड को एलोकेट किया था टू कम्बेट कोविड-19। पॉइंट 2 देख लेते हैं, इंसेंटिवाइजिंग रिलीफ पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर हमने कोई टैक्स अप्लाई नहीं किया, उनको वेवर दिया था कि वो ऑपरेट कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन सिचुएशन, ठीक। पॉइंट 3, एस्टैब्लिशिंग द नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर एंड नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये स्पेशल द इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए थे स्पेशली फॉर कोविड-19, ठीक। अच्छा, चूंकि इस लेक्चर के प्रीएम्बल में हमने बात किया था कि कोविड-19 इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। द पेंडेमिक अ वेक अप कॉल, कैसे, यानी पेंडेमिक के पॉजिटिव्स क्या है या प्रोस क्या रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो है इनकलकेटिंग सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेसेसिटेटिंग अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स फॉर करेक्टिंग व्हाट हैज बीन करप्टेड ओवर द इयर्स। कोविड-19 के आउटब्रेक ने यह रियलाइज कराया वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वो मदर नेचर को डाउन प्ले नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इन सिंपल कोविड-19 ने दुनिया को यह रियलाइज कराया कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है ना वो इज इनएविटेबली इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड शुड दे आर टू सर्वाइव फॉर एनी फर्दर। पॉइंट 2 अगर देख लें, रेचेटिंग अप द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन। अब नर्थन गार्डल्स अपनी एक बुक में लिखते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस इन 21st सेंचुरी की जो 21st सेंचुरी है, इसमें वही स्टेट जो है ना वो प्रॉपर फंक्शनल होगी जो कि जिसके इंस्टीट्यूशंस डिजिटाइज होंगे, ठीक। तो कोविड-19 के आउटब्रेक ने भी जो है ना वो जो इंस्टीट्यूशनल डिजिटाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस थी उसको फर्दर इंक्रीज किया। आगे देख लेते हैं पॉइंट 3, COVID-19's outbreak is a tangible manifestation of primacy of national comprehensive security instead of state security। अब हमें comprehensive security की चूंकि यहाँ पे बात है, तो ये हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें हम
मल्टीपल सेक्टर्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस को। जैसे कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी में हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी एंड सो ऑन। तो ये कोविड-19 के आउटब्रेक का ही नतीजा है जिसके बाद स्टेट्स ने कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी को फोकस किया, जबकि उससे पहले बाकी स्टेट्स लाइक पाकिस्तान जो है ना वो मिलिट्री और डिफेंस सिक्योरिटी को पाकिस्तान प्रायोरिटाइज करता था। कोविड-19 ने कंट्रीज को यह रियलाइज कराया कि कोई भी स्टेट सेफ नहीं है अनलेस उसकी पॉपुलेशन सेफ ना हो। ठीक, ये हमारे पास कुछ पॉजिटिव्स थे कोविड-19 की वजह से, जिन कोविड-19 ने रियलाइज कराया ग्लोबल कम्युनिटी को। अच्छा, अब चूंकि हमने ऊपर इश्यूज को हमने यहाँ पढ़ लिया कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक रियल में क्या इश्यूज पैदा हुए। अब पॉइंट 5 में हम देखेंगे कि क्या पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए गवर्नमेंट के इन फ्यूचर अगर कोई ऐसे सिनेरियो डेवलप हो। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, अटेनिंग पॉलिटिकल ऑर्डर एंड प्रायोरिटाइजिंग पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड-19 के आउटब्रेक ने शायद कुछ किया ना हो या ना हो, लेकिन एक बात कैटेगोरिकली क्लियर कट हो गई या ये प्रूव हो गई कि कोई भी स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई भी स्टेट चैलेंजेस को नेविगेट नहीं कर सकती जब तक उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझना चाहिए कि पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि एक आईआर की या पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब यह है कि किसी पॉलिटी में गवर्नेंस स्ट्रक्चर का कैसा उसका स्टेचर क्या है। ठीक, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कितने रिस्पॉन्सिव हैं, वहाँ का स्टेट क्राफ्ट क्या है, कैसा वो क्या रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव है या नहीं, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स की कैसी नेचर है, इंटर एंड इंट्रा स्टेट पार्टी में क्या डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, एंड सो ऑन। इसी को हम इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोविड-19 जैसे सिचुएशन से डील करने के लिए कंट्री स्पेशली पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ की जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो इस बात को मतलब प्रायोरिटाइज करें कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो जो है पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो इनएविटेबली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही बाकी जो सेक्टर्स हैं या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनल होंगे या काम करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हमें या पाकिस्तानी स्टेट्समैन को ये रियलाइज करना होगा कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट 2 की तरफ चले जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट बेस वेस्ट टू अल्टर एग्जिस्टिंग फैक्टर लेट ओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अब हमें पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्री या जिसको हम कहते हैं पेरिफेरी कंट्री है पाकिस्तान, जो कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है। रॉ मटेरियल से मतलब कॉटन है, ठीक, या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हमारे एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान उन्हीं को एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है या इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है इन्हीं रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे। तो कोविड-19 ने ये रियलाइज कराया या प्रूफ किया कि कंट्रीज 21st सेंचुरी में सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर कंट्रीज ने नॉन लीनियर इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करना है तो उन्हें चाहिए कि वो अपना जो एक्सपोर्ट बेस है उसको ब्रॉडन करें, डाइवर्सिफाई करें, ठीक, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं या उसको हम कहते हैं इनोवेशन लेट इकोनॉमी ओरिएंटेशन जो है ना वो अडॉप्ट करें, तभी उनका सर्वाइवल होगा। ठीक, तभी उनकी इकोनॉमी उस मैनर में ग्रोथ करेगी जिस तरह करनी चाहिए। सही, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पॉलिसी हमारी या जो हम रेकमेंड करते हैं स्टेट ऑफ पाक वो ये है कि एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि कल को कोई और अगर पेंडेमिक का इरप्शन होता है तो उस केस में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रोफाइल जैसे हमने ऊपर पढ़ा ट्रेड डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे सिनेरियो ना हो वहाँ पे। पॉइंट 3 की तरफ चले जाते हैं, प्रायोरिटाइजिंग डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल आर नॉलेज इकोनॉमी। जैसे इससे पहले लेक्चर्स में हम बार बार बात करें डिजिटलाइजेशन क्या है, पाकिस्तान की सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है और विजन 2025 क्या है। तो कोविड-19 ने इस बात को रियलाइज कराया या मैनिफेस्ट किया कि डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन जो है ना वो एक ऐसा एक प्रोसेस अब हो गया है जिसके बगैर स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो पाकिस्तान और बाकी जो स्टेट्स हैं डेवलपिंग, स्पेशली पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो जल्द या इमरजेंसी बेसिस पे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को बोल्स्टर करे और उसको एक प्रॉपरली यानी कि उसके साथ एक सिग्निफिकेंस अटैच करे ताकि पाकिस्तान जो डिजिटल ड्राइव है या जो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसकी रेस में पाकिस्तान पीछे ना रहे। तो ये हमने देखा। आगे देख लेते हैं पॉइंट 4, अटैचिंग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस विद रिजल्ट ओरिएंटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हमें ये पता है कि जैसे पाकिस्तान सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें, विजन 2025 की बात करें या वैसे ही इमरान खान जैसे कहते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान में रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट सेंट्रिक एंड मतलब हमारे पास इशू सेंट्रिक यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक हम
टेक्नोलॉजिकल जो रेस है या फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम रिवोल्यूशन के साथ पेस नहीं अपने रख सकते। सही, तो हमें चाहिए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे ऑलरेडी हो रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज करें और उसे इशू सेंट्रिक और मार्केट सेंट्रिक बनाएं, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो मार्केट को और पॉपुलेशन को मतलब फ़ायदा पहुंचाए, वो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ना रहे। ठीक है, आगे पॉइंट 5, ब्रिंगिंग हेल्थ सेक्टर एट पार विथ मॉडर्न हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो कोविड-19 ने क्लियर कट किया कि हेल्थ सेक्टर जब तक मॉडर्नाइज नहीं होगा तब तक वहाँ पे इंडिविजुअल सेफ नहीं है। जब इंडिविजुअल सेफ नहीं होंगे तो इन अदर वर्ड्स उस स्टेट की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो अंदर थ्रेट होगी इन केस उसके इंडिविजुअल्स सेफ नहीं हो। पॉइंट 6 की तरफ से जाते हैं, फोकसिंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मतलब यह है कि जो हमारी लेबर फोर्स है या वर्क फोर्स है या ह्यूमन एजेंसी है उनको ऐसे स्किल्स प्रोवाइड करने हैं जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हों। ठीक, जो कि मतलब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में अनएम्प्लॉयड ना रहें, डिपेंडेंट ना रहें इन केस ऑफ लॉकडाउन इंड्यूस बाय एनी फ्यूचर पेंडेमिक। ठीक, तो ऐसी हमने उनको स्किलफुल मतलब ऐसी डेवलपमेंट उनकी करनी है या ऐसे स्किल्स या ऐसे एक्सपर्टीज हमने उनको देने हैं कि वो अपने लिए खुद जो है ना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, गिवन द फैक्ट दैट कोविड-19 हो या जो भी हो, नॉर्मल सिचुएशन हो और केयोटिक सिचुएशन हो, उसके में अनएम्प्लॉयड ना रहे हमारे जो लेबर फोर्स हैं। पॉइंट 7 की तरफ, वर्किंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक और डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू मेक इंस्टीट्यूशंस मोर रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव। जैसे हम उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजिटाइजेशन। अब कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान का जो सारा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था या जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पाकिस्तान में था वो बिल्कुल इंटायरली जो है ना वो पैरालाइज्ड हो गया था कोविड-19 की वजह से। क्योंकि कोविड-19 की वजह जो लॉकडाउन थी उसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो मतलब जो इंस्टीट्यूशन में जो वर्कर्स समझ लें उनको या जो ऑफिशियल्स थे वो विजिट नहीं कर सके। ठीक, मतलब वो अपना काम उस तरीके से कर नहीं सके क्योंकि ट्रेडिशनल मोड ऑफ यहाँ पे वर्किंग है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस को डिजिटाइज करे ताकि वर्क फ्रॉम होम का जो हमारे पास एक कंसेप्ट है वो प्रॉपरली फंक्शनल हो इन केस ऑफ एनी लॉकडाउन सिचुएशन। आगे चले जाते हैं पॉइंट 8 की तरफ, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड रैशनलाइजेशन सो एज टू टाइमली अरेस्ट। यहाँ पे टाइमली के बाद जो टू लिखा है उसको आप लोग कंसिडर ना करें। सो एज टू टाइमली अरेस्ट क्राइसिस एस्केलेशन। अगर हमारे पास इकॉनमी हमारी अगर इकॉनमी स्टेबल होगी, नॉन लीनियर वे में हमारी इकॉनमी अगर ग्रो करेगी तो उस केस में पाकिस्तान किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को कन्फ्रंट कर सकता है इजीली। नहीं कन्फ्रंट कर सकता है बल्कि उसको कंकर भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है फिस्कल स्टेबिलिटी। अब फिस्कल की बात ऊपर शायद हमने की या नहीं। फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करे, ठीक, और अपने जो अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करें ताकि पाकिस्तान के पास क्राइसिस सिचुएशन को कन्फ्रंट करने के लिए पाकिस्तान के पास इतना मतलब हमारे पास रिसोर्सेस हों कि हम क्राइसिस सिचुएशन को कन्फ्रंट कर सकें। आगे 9th पॉइंट, इराडिकेटिंग एजुकेशनल अपार्थाइड एंड जेंडर मार्जिनलाइजेशन। तो हम एजुकेशनल अपार्थाइड या डिवीजन से मतलब हमें यह बताया कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन के डिफरेंट टायर्स हैं, मदरसा सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस सिस्टम को हमें ख़त्म करना है ताकि जो आउट ऑफ स्कूल हमारे चिल्ड्रन हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकें। ठीक, उसके लिए हमें चाहिए कि जो डिजिटल और वर्चुअल मोड्स हैं या मीन्स ऑफ एजुकेशन है उनको हम प्रायोरिटाइज करें। ठीक, जैसे यूट्यूब इटसेल्फ जो है ना एक हमारे पास एक मीडियम है फॉर एजुकेशन। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे इंटरनेट की पेनिट्रेशन को इंश्योर करें ताकि उससे जो पॉपुलेशन आउट ऑफ स्कूल हैं सही वो एजुकेशन वर्चुअली अटेंड कर सके। क्योंकि एक एजुकेटेड जो है ना वो पॉपुलेशन एक कंट्री की लेटेंट पावर होती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट पावर। ठीक है, और पाकिस्तान में जो जेंडर गैप है या जेंडर इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान जैसी कंट्री जब तक इस इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं करती तब तक पाकिस्तान की इकॉनमी प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर सकती। ये तो एक वैलिड बात है। ठीक, ये क्योंकि 50% हमारी जो पॉपुलेशन सोसाइटी है वो बेस करती है जेंडर फीमेल्स पर। तो जब तक हमारी ये वर्क फोर्स इस हमारे पास जो सेक्शन है अदर सेक्शन या अदर हाफ ऑफ सोसाइटी, इनके एक्सपर्टीज़ को अगर हम यूटिलाइज नहीं करते तो इसका मतलब है कि सोसाइटी में या कंट्री में 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि डिपेंडेंट है, न सिर्फ डिपेंडेंट है बल्कि वो मार्जिनलाइज है, सबसर्वियंट है टू द अर्निंग हैंड्स। तो हमें चाहिए कि इनका पोटेंशियल और इनकी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करें इन अ वे सो एज टू enable them to contribute towards economy in a productive manner। आगे चले जाते हैं पॉइंट 10, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। कोविड-19 ने यह भी बात यानी कि शो किया या रियलाइज कराया कि जब तक किसी भी कंट्री में जो रीजन्स हैं वो प्रॉपरली उनको
उनमें प्रॉपरली अगर हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, वहाँ पे क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको इस्टेब्लिश ना करें, तो उस कंट्री का किसी भी पेंडेमिक और नेचुरल किसी ऐसे इवेंट से का सामना करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास बैकवर्ड एरियाज है, जो पेरिफेरी है पाकिस्तान में, उसमें डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करे और उनकी मतलब जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए रोल प्ले करे हुकूमत या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज की डिस्कशन में हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने बड़ा ही जो ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन द आफ्टरमेथ ऑफ कोविड-19। कोविड-19 इज बेसिकली अ वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स, जैसे एक टॉपिक आया था 2021 में। तो अब कोविड जैसे सिचुएशन से निपटने के लिए पाकिस्तान तभी इसको कन्फ्रंट कर सकता है जब पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी, यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्डर होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस और रिस्ट्रेंट उनकी नेचर इंक्लूसिव होगी, ना कि एक्सट्रैक्टिव। ठीक, पाकिस्तान अगर इंस्टीट्यूशंस को डिटाइज करता है तो हमारा जो स्टेट क्राफ्ट है या गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिव होगा एंड इफेक्टिव होगा। ठीक, इसी तरह अगर हमारे पास इकॉनमी हमारी स्टेबल होगी तो ही पाकिस्तान में जो मतलब एक इंटर प्रोविंशियल जो क्लैश है वो ख़त्म होंगे, सही, या फेडरलिज्म का जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है वो कंसोलिडेट होगा। अब जब ये सारा होगा तो फिर वो नेशन या यहाँ का जो हम एक कंसेप्ट है स्टेटहुड का वो फर्दर फोर्टिफाई होगा, और अगर ये फोर्टिफाई होगा तो फिर एक ऑल कंबाइंड रिस्पॉन्स हम शो करेंगे टुवर्ड्स सर्टेन इवेंट्स लाइक द कोविड पैंडेमिक। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.